ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہم پارہ نمبر 13 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے پارے میں پڑھی جانے والی کچھ چیزیں۔ پچھلے بارے میں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے ذمہ سب کا رزق ہے، تو پھر تم لوگوں کو اپنے بارے میں رزق کی فکر کیوں لگی رہتی ہے؟ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے کہ آپ بس پڑھیں، آپ کی ہر ضرورت میں پوری کر دوں گی، اسی طرح اللہ نے ہم سب سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کروں گا، بس تم وہ کام کرو جو میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے اس بارے سے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی ضروریات کی فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دے گا۔ اور مزید یہ بھی دیکھا کہ استغفار کی برکت سے کس طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ رزق اور آسانیوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور ساتھ ہی ہر قسم کے غم و فکر سے نجات بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر یقین کر لیں کہ ہماری تقدیر کا ہر فیصلہ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی مالک کل ہے، تو ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ہماری آدھے سے زیادہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کی ساری زندگی محبتوں اور نفرتوں کے بین بین ہی رہی، بہت خوبصورت اخلاق کے مالک تھے، اس لیے باپ کی توجہ کا مرکز تھے۔ جس طرح ہر مؤدب بچہ اپنے پیرنٹ کو اچھا لگتا ہے، والدین پسند کرتے ہیں، اسی طرح حضرت یوسف بھی اپنے والدین کی توجہ کا مرکز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خوبصورت خواب دکھایا اور اس کی تعبیر 40 سال بعد دی۔ اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نہ صرف علم و حکمت سے نوازا بلکہ بادشاہت بھی عطا کی۔ دیکھیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح شیطان حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پہلے آدم کے 2 بیٹوں کو حسد سے لڑوایا، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا۔ سوتیلے بھائی تھے، شیطان کے بہکاوے میں آگے، بھائی سے حسد کا شکار ہو گئے۔ شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ تمہارا باپ تمہارے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا کیا؟ شیطان کے بہکاوے میں آگے اور چالیں چلنا شروع کر دی، مکر و فریب کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کچھ کر دیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیں اور باپ کی ساری توجہ کو اپنے لیے خالص کر دیں۔ اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ باپ کی محبت اور شفقت سے محروم کر کے اندھیرے کنویں میں ڈال دیے جانا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرانا تھا کہ نبی اور پیغمبر بھی اپنی طرف سے کسی اختیار کے مالک نہیں، وہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ شاکر رہیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کس لیے ہوا، مجھے ہی کیوں ایسا ہوا، یا یہ پریشانی میرے ہی لیے کیوں آئی ہے؟ اس طرح کے وساوس تب آتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن اور راضی نہیں ہوتا۔ زندگی کی شاہراہ پر عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کی شفقت سے لے کر مصر تک کی بادشاہت ملنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام محسن تھے، کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کا غصہ نہیں دکھایا، دوسروں کو بھائیوں کی شکایتیں لگا کر خود کو مظلوم نہیں بنایا، بلکہ صبر کیا۔ یہ رشتوں کو جوڑنے والی بات ہوتی ہے، یہ اخوت اور بھائی چارے کی بات ہے، اپنوں کو جوڑنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں صرف ایک ہستی ہے جو میرے اور آپ کے بلکہ ہم سب کے دکھ سنتی بھی ہے اور ان کا مداوع بھی کرتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب ذوالجلال کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں، حفیظ ہوں، نقیب بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اور یہ بھی کہ کنویں میں ڈالنا حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، اور وہاں سے نکل کر
अजीज मिस्र के यहाँ जाना एक नेमत थी। नफरतों का शिकार हुए तो कुएं में फेंक दिए गए। अजीज मिस्र के यहाँ आए तो एक नई साजिश मुंतजिर थी। पहले नफरतों का शिकार, फिर मोहब्बतों का शिकार हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन सेहत और जवानी अता की थी। अजीज मिस्र की बीवी ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी, फुसलाने लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। बाप की तरबियत काम आ गई। ऐन मौके पर औरत का शौहर आ गया, जिसे देखकर उसने चालाक लोमड़ी की तरह पलटा खाया और इल्जाम धर दिया हजरत यूसुफ के सर पर, और फौरन कहने लगी, क्या कहते हो तुम उस आदमी के बारे में जो तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे? देखिए, ये है औरत की चालबाजियां। लेकिन क्या है, अल्लाह के वली ने, अल्लाह के नबी ने खुद को औरत की चालबाजी के सामने नहीं झुकाया, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया और अजीज मिस्र की बीवी कुछ भी हासिल न कर सकी। बदनाम भी हुई और नाकाम भी हुई, कुछ भी हासिल न कर सकी। एक बात और भी, जो अच्छी बीवियां होती हैं वो किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर भी देखना गवारा नहीं करती। हमेशा दूसरों की तरफ वो मुतवज्जो होगी जो अच्छी बीवी नहीं होगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमें ऐसी खवातीन से बचाए और उन्हें भी हदायत की तरफ ले आए। अपनी हया को कायम रखें और बेटियों को भी हया का दर्स दें। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाल दिए गए, मगर उन्होंने बुराई के सामने सरेंडर नहीं किया। जब भी अल्लाह ताला किसी नबी को एक नबूवत अता करता है तो उसे कुछ वक्त के लिए तन्हाई में बुलाता है ताकि जिक्र अज़कार करे, पूरे खशू और वजू के साथ अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो हो। जिस तरह जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज करना था तो गारे हिरा में बुला लिया, इसी तरह हजरत मूसा को जब नबूवत से सरफराज करना था तो कोहे तूर पर बुला लिया, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज करना था तो जेल के अंदर बुला लिया। इससे क्या मालूम हुआ कि तन्हाई बेहतरीन साथी होती है। तन्हाई गौर फिक्र करने का बेहतरीन मौका देती है, तो कुछ देर के लिए तन्हा बैठकर गौर फिक्र किया करें। अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। अगर आप अल्लाह ताला की कायनात में मौजूद निशानियों पर गौर फिक्र करेंगे तो ये गौर फिक्र आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत बना देगा। आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत गहरा जुड़ जाएगा। बाप की शफकत से महरूम करके कुएं में डाल दिया गया। बाप से जुदा हो गए, माँ से जुदा हो गए, बहन भाइयों से अलग हो गए। एक एक करके सब जुदा होते गए, दूर होते गए, और कैदे तन्हाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। क्या पता चलता है कि नबूवत मिलने के आसार पैदा हो रहे हैं। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, मोमन अपनी अच्छी आदत को नहीं छोड़ता। और अब हम पारा नंबर 13 की तरफ आते हैं। इसमें हम सीखेंगे अखुवत का रिश्ता, भाई का भाई के साथ रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। कहा जाता है ना, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। रिश्तों का एहतराम करना है। बड़े भाई जो होते हैं वो बाप की तरह होते हैं, इसलिए अपने भाइयों के साथ अपने ताल्लुक को अच्छा रखना है। इसी तरह अपनी बहनों के साथ भी अपने रिश्ते को अच्छा रखना है। आज का पारा पढ़ने के बाद एक फैसला कर लीजिएगा कि अगर किसी बहन या किसी भाई से नाराज हैं तो फौरन जाकर उससे सुलह कर लीजिएगा, मना लीजिए उसको। इससे रिश्ते जुड़ते हैं और ये सिला रहमी की बेहतरीन मिसाल है। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है, जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा और जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा। रहम मेरी सिफ्त है, जो रहम करेगा मैं उस पर रहम करूंगा। इस पारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रिश्ता उसके भाइयों के साथ दिखाया जाएगा कि किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया। उनकी हर जुल्म और ज्यादती के बदले में सब्र इस्तकामत का मुजाहरा किया और रोए पीटे नहीं, तानेबाजी नहीं की। किसी किस्म का उनके अंदर ये एहसास नहीं डाला कि तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की थी, बल्कि सब्र किया और रिश्तों को अच्छा बनाया। इसके साथ साथ ये भी हमने देखना है कि तमाम मामलात को साफ रखना है, खा किसी भी किस्म का मामला हो। अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करना है। अब हम आते हैं अपने पारा की तरफ।
पारे का आगाज हो रहा है, वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। रकू का नंबर लिख लें 53 से 56। अजीज मिस्र की बीवी का एतराफ़े जुर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने लिए खासुल खास कर लूं। फिर जब उसने उससे बात की तो कहा, बिलाशुबा आज तुम हमारे यहाँ साहबे इक्तदार और अमानतदार हो। देखें कि किसी किस्म का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी इज्जत भी रखी। दौरान कैद जब आदमी हजरत यूसुफ को लेने आया था तो हजरत यूसुफ ने कहा था कि नहीं, पहले जाओ और अपने मालिक से कहो उन औरतों से उनका हाल पूछें, उनका मामला क्या हुआ। यानी पूरे इज्जत के साथ आए, किसी लालच में नहीं कि वो मुझे इक्तदार का ओहदा दे रहा है तो मैं भागा भागा आऊं और उसे कबूल कर लूं। और फिर आकर क्या कहा, उसने कहा, मुझे इस जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दे, बेशक मैं पूरी तरह हिफाजत करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। इससे ओहदा मांगना जायज नहीं है। अल्लाह ताला को खुद ओहदे मांगने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ओहदा मांगना, उसके पीछे एक हिकमत थी। उनका ओहदा मांगना इसलिए नहीं था ताकि वो अपना घर भर लें, मुल्क और हुकूमत को लूट कर खा लें, अपना पेट भर लें और गरीबों को, अवाम को भूखा मरने के लिए छोड़ दें। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को देख लिया था जिसकी ताबीर उन्होंने जान ली, और उसी ताबीर के पेश नजर उन्होंने इस ओहदे की डिमांड की, क्योंकि वो जानते थे कि इस ओहदे पर आए बिना वो इन तमाम मामलात की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकेंगे। सवाल आता है ना जहन में कि अगर ओहदा मांगना जायज नहीं है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओहदा क्यों मांगा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा मांगने या उसकी हिरस रखने वाले के मुतल्लिक फरमाया है, हम ऐसे शख्स को हरगिज ओहदा नहीं देंगे जो उसका इरादा रखे। इसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन जो सबसे सही जवाब है और मजबूत भी है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ओहदे पर तो फायज कर ही दिया था। इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, बिलाशुबा तो आज हमारे यहाँ साहबे इक्तदार है, ईमानतदार है। जिस तरह आजकल पहले वजीर चुन लिए जाते हैं ना, और फिर वो अपने लिए शोबे का इंतखाब खुद करते हैं, उसी तरह जब बादशाह ने इन्हें यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साहबे इक्तदार और अमानतदारी का रुतबा दे दिया तो हजरत यूसुफ जानते थे कि इस मनसब के तकाजे खजाने पर मुकम्मल इख्तियार के बगैर पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने अपने लिए ये इख्तियार तलब किया था। किसी दुनियावी लालच के लिए हरगिज उन्होंने ओहदा नहीं था मांगा, और उसकी अमली सूरत फिर देखें, उन्होंने इसकी तदबीर भी की थी। अगर कोई शख्स ओहदे के काबिल हो तो वो ओहदा ले भी ले तो कोई हरज नहीं है। जो शख्स हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हो और इन्हीं के जैसे मकाम पर फायज हो, बेशक वो इस लायक होता है कि ओहदा मांग सके। जो इन औसाफ के मालिक होते हैं, इंसान की सबसे मुंह जोर कुव्वत यानी जिन्स समेत तमाम बेईमाना कुव्वतों मसलन गुस्सा, खयानत और जुल्म, इन सब पर काबू रखना होता है और नबूवत से भी सरफराज हो, क्योंकि ऐसी सूरत में ना उस ओहदे की जिम्मेदारी के जाया होने का खतरा है, ना किसी किस्म की खयानत का। दूसरा शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करे और आराम से रहे, खुद अपने आप को इस आजमाइश में ना डाले जिसका इंजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर बता दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी 10 आदमियों का अमीर हो उसे तौक पहनाकर लाया जाएगा, अदल के सिवा कोई चीज उसे नहीं छुड़ाएगी या उसे। और इसी तरह हमने इस सरजमीन में हजरत यूसुफ को इक्तदार अता फरमाया, इसमें से जहां चाहता जगह पकड़ता था। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुंचा देते हैं, और हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते, और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाए और डरते रहे।
क्या सीखा इस रुकू से? नफ्स अमारा, ये समझ लें कि ये भी एक किस्म का शैतान होता है जो हमारे साथ हमेशा से लगा हुआ है, हमसे गलत काम करवाता है। नफ्स की 3 किस्में हैं। नफ्स अमारा ये गुनाहों की तरफ माइल करता है। इंसान जो है वो फितरी तौर पर लज्जत पसंद होता है। नफ्स अमारा दावत देता है कि आ जाओ मजा कर लेते हैं, मजा ले लो जिंदगी का। फिर दूसरे नंबर पर है लफ्स लवामा। सूरत क्यामत में इंशाल्लाह हम इसके बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। मसलन कि जब हम गुनाह कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक मलामत का सिलसिला शुरू हो जाता है कि हाय ये मैंने क्यों कर दिया, ये तो बहुत बुरी बात थी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं था करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। यानी पछतावा, निदामत, अंदर से मलामत शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं नफ्से लवामा। अगर तो आप नफ्से लवामा की डांट सुनकर सुधर जाते हैं तो समझ लें कि आपकी इस्लाह हो गई। इस्लाह के बाद फिर एक तीसरा नफ्स सामने आएगा जिसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना जो अंबिया, औलिया, अल्लाह समेत हर उस बंदे का है जो अल्लाह से डरता है और तकवा इख्तियार करता है। ए मुतमइन नफ्स, चल अपने रब की रजा की तरफ, और वो खुशी खुशी अपने रब की रजा की तरफ चल पड़ता है। नफ्स उमारा को सुधार लीजिए, उससे बुरा मेहमान कोई नहीं। आप देखें ऐसा मेहमान जिसकी आप इज्जत करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, अपने घर में उसका हर तरह से उसकी तकरीम करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। फिर वही मेहमान जब आपके यहाँ से किसी और जगह पर जाता है तो जाकर आपकी बुराइयां शुरू कर देता है कि वो तो इंतहाई बद अखलाक हैं, उन्हें तो पूछने का तरीका ही नहीं है, उन्हें तो किसी किस्म का कोई सलीका ही नहीं, जरा भी मेहमानदारी नहीं की। और देखें जब यही बातें आपके कानों तक आती हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको तकलीफ होती है और आप नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी मेहमान आपके यहाँ आए। क्या आप चाहेंगे कि एक ही शख्स को आप इज्जत देकर अपने घर से रुखसत करें और वो बाहर जाकर आपकी बुराई करे? आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो मेहमान दोबारा आपके यहाँ आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नफ्स अमारा को सुधार लीजिए, इससे बुरा मेहमान कोई नहीं। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इससे बुरा मेहमान कौन है जिसकी तुम इज्जत करो और वो तुम्हें इतना जलील कर दे। ये महफूम हदीस है। सोचिए, आप एक मेहमान की खातिर मदारत करते हैं, उसकी खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ते, और वो बाहर जाकर फिर आपकी बुराइयां करता है कि ये तो बहुत कंजूस हैं, जरा भी खातिर मदारत नहीं की। अगर उसकी बुराई आप तक पहुंचती है तो आपको तकलीफ होगी। आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह का मेहमान आपके पास आए। साहबा कराम कहने लगे, अल्लाह के नबी, हमें ऐसा मेहमान नहीं चाहिए जिसकी हम इज्जत करें और वो हमें बदनाम करे। फरमाया, ये आपका नफ्स है जो आपके पहलू में है। ये नफ्स ही तो है जो इंसान को हर जगह जलील करवाता है। सोचिए जरा कि इससे पहले जन्नत में जब अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया था हजरत आदम को सजदा करो, तो उस वक्त कौन सा शैतान था जिसने शैतान को गुमराह कर दिया कि तुमने सजदा नहीं करना? नफ्स जो इंसान के पहलू में है। ये नफ्स अमारा ही तो है जो इंसान के अंदर बुराई की तहरीक पैदा करता है और इंसान को अच्छाई की तरफ नहीं आने देता। ये इंसान का नफ्स ही है जो इंसान को गुनाह पर उभारता है। इसी नफ्स ने शैतान को गुनाह पर उभारा और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मजबूर कर दिया, और यही नफ्स आप सबको अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ उभारता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नफ्स अमारा की शैतानियों से महफूज रखे। एक बात याद रखें कि गुनाह की तरफ तबीयत जो है वो खुद ब खुद माइल होती है और नेकी की तरफ उसको खींच खींच कर लाना पड़ता है, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह जिसे बार बार पुकारना पड़ता है, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। इसी तरह आपका नफ्स हमारा आपको नेकी की तरफ नहीं आने देता। तो आपने क्या करना है, जिद्दी बच्चे की तरह, जिस तरह आप उसे बार बार तलकीन करते हैं नमाज की, खींच खींच कर लाते हैं उसको, बिल्कुल उसी तरह आपने जबरदस्ती अपनी तबीयत को खींचकर नेकियों के रास्ते पर लाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स के हवाले न करे,
आमीन। जज्बे अच्छे होते हैं मगर जज्बातियत अच्छी नहीं होती। देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे मोहब्बत करने वाले थे। ये मोहब्बत का जज्बा था, अच्छा था। जब भाइयों को देखा जज्बातियत का शिकार नहीं हुए। जज्बातियत बुरी चीज है। रोना पीटना चीखना चिल्लाना कि हजरत यूसुफ अपने भाइयों को सामने देखकर तानेबाजी शुरू कर देते, हाँ भाई आ गए हो, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मुझे कुएं में फेंक दिया। उन्होंने अपने भाइयों को कुछ भी नहीं कहा बल्कि उनकी इज्जत की, उनकी मदद करने की कोशिश की और दर पर्दा उनकी मदद भी की। भाइयों से किसी किस्म का बदला नहीं लिया, उन्हें किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं किया। याद रखें, नफ्स के खिलाफ जाकर काम करना पड़ता है, यही अंबिया की सिफ्त है। नफ्स तो हमेशा बुराई पर लगाता है, इसलिए आपने नफ्स की नहीं माननी, अमानतदार बनना है, खयानत नहीं करनी, अपने फराइज और अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने ओहदों का सही इस्तेमाल करना है। ओहदा और इक्तदार देने वाली अल्लाह ताला की जात है। आप दीन की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अगला रुकू नोट कर लें, 58 से 68, 56 से 68। ताकतवर जमात का भिखारी बन जाना। अगर अल्लाह ताला आपको दौलत इज्जत दे तो कभी गरूर नहीं करना, कभी उस पर अकड़ना नहीं है, कभी फख्र नहीं करना। ये जो दौलत इज्जत रिज़्क ये सब ढलती छाया है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। अगर तकब्बुर करोगे तो ये तुम्हारे पास से चली जाएगी, शुक्र करोगे तो तुम्हारे लिए नेमतों को बढ़ाने का जरिया बन जाएगी। फख्र गुरूर और तकब्बर एक लम्हे के अंदर इंसान की काया पलट कर रख देता है और इंसान बादशाहत से फकीरी तक उतर आता है। यही आपको इस रकू में नजर आएगा कि किस तरह दौलत के नशे में गरूर और हसद का शिकार होकर हजरत यूसुफ के भाइयों ने भाई को बाप से जुदा कर दिया, उसे कुएं में डाल दिया। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। और वो लोग जो खुद पर फख्र करते थे, अपनी मजबूत जमात होने का तकब्बर था उनके अंदर, आज बेकारी बने हुए हैं। हजरत यूसुफ के सामने सवाली बने खड़े हैं कि प्लीज हमें भी कुछ गल्ला दे दें, प्लीज थोड़ी सी हमारी भी मदद कर दें ताकि हम भी अपनी फैमिली के लिए कुछ यहाँ से गल्ला ले जाएं, ताकि उनके खाने पीने का कोई सामान कर सकें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें गरूर से बचाए। और यूसुफ के भाई आए, फिर उसके पास दाखिल हुए तो उसने उन्हें पहचान लिया और वो उसे ना पहचानने वाले थे। क्या मालूम हुआ, हजरत यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। क्यों? अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने इल्म और हिकमत दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। और जब उसने उन्हें उनके सामान के साथ तैयार कर दिया तो कहा, मेरे पास अपने उस भाई को लेकर आना जो तुम्हारे बाप से है। यानी जब भाइयों को देखा तो अपने सके भाई यानी बिन्यामीन जो उनके सके भाई थे, उनके लिए भी दिल में तड़प पैदा हो गई और कहने लगे कि अपने भाई को भी लेकर आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप पूरा देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ? फिर अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ना माप होगा और ना मेरे करीब आना। उन्होंने कहा, हम इसके बाप को इसके बारे में जरूर आमादा करेंगे। गौर करिएगा, इसके बाप को, किस कदर बदतमीजी वाली बात है ना। ये है इल्म और जहालत का फर्क। हजरत यूसुफ क्या कहा करते थे, या अबाती, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप। और ये क्या कह रहे हैं भाई, हजरत यूसुफ के भाई क्या कह रहे हैं, इसके बाप। हजरत यूसुफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई से मुलाकात करनी है, कि भाई को वापस अपने पास लाना है। उन्होंने कहा, हम इसके बाप को इसके बारे में जरूर आमादा करेंगे और बेशक हम जरूर करने वाले हैं। और उसने अपने जवानों से कहा, इनका माल इनके कजावों में रख दो ताकि वो उसे पहचान लें जब वो अपने घर की तरफ वापस जाएं, या शायद वो फिर आ जाएं। हजरत यूसुफ ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि इनके जो पूंजियां हैं, जो इनका सामान है, जो पैसा लेकर आए हैं, इनके सामान के थैलों के अंदर रख दो। इसकी वजह क्या थी, एक तो ये कि उनकी खिदमत करना, उनकी मदद करना, और दूसरा हुस्न सलूक करना कि जब वो वहां जाकर अपना पैसा वापस देखेंगे तो फिर वापस आएंगे दोबारा लेने के लिए और मुतासर भी हो जाएंगे कि मेहमान नवाज अच्छे थे,
हम दोबारा जाएं। यानी ये हजरत यूसुफ अपने भाई को वापस लाने के लिए तदबीर कर रहे हैं। तो जब वो अपने बाप की तरफ लौटे तो उन्होंने कहा, ए हमारे बाप, हमसे माप रोक लिया गया है, सो तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज कि हम गले का माप लाएं, और बेशक हम इसकी जरूर हिफाजत करने वाले हैं। देखें भाइयों का इखलाक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी मदद की, गल्ला भी दिया, पैसे भी वापस कर दिए, और उन्होंने शुक्र का एक कलमा भी नहीं कहा। वापस आकर इतना तक नहीं बाप को कहा कि बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी की, बड़ी खिदमत की, हमें गल्ला भी दिया और हमें हमारी रकम भी वापस कर दी, यानी कि बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। ऐसे होता है ना कि जब हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। ये इल्म और जोहल का फर्क है। उसने कहा, मैं इस पर इसके सिवा तुम्हारा क्या एतबार करूं, जिस तरह मैंने इसके भाई पर इससे पहले तुम्हारा एतबार किया था। सो अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। यानी जब उन्होंने कहा कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेजो, हम पर एतबार करो, तो उन्होंने क्या कहा, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे एतबार को इतना ही समझता हूँ जितना कि हजरत यूसुफ के मामले में मैंने पाया था तुम्हारा एतबार। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपने माल को पाया कि उनकी तरफ वापस कर दिया गया है। कहा, ए हमारे बाप, हम क्या चाहते हैं, ये हमारा माल हमारी तरफ वापस कर दिया गया है, और हम घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे, और एक ऊंट का बोझ माप ज्यादा लाएंगे। ये बहुत थोड़ा माप है। यानी कहने लगे कि भाई को भेज दो, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे, और एक ऊंट का बोझ है गले का, वो भी हमें ज्यादा मिल जाएगा। इस तरह हम अपने घर वालों के लिए माशियत का जो खाने पीने का सामान है वो ज्यादा ले आएंगे। इसने कहा, मैं इसे तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा, यहाँ तक कि मुझे तुम अल्लाह का पुख्ता अहद दोगे, तुम हर सूरत इसे मेरे पास लाओगे, मगर ये कि तुम्हें घेर लिया जाए। फिर जब उन्होंने उसे अपना पुख्ता अहद दे दिया तो उसने कहा, अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं जामिन है। और उसने कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना। देखें, जब अल्लाह ताला किसी को नेमत देता है तो हसद का शिकार भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे दिए थे, तो उन्हें खदशा लाहक हुआ कि इतने जवान बेटे इकट्ठे के इकट्ठे 11-12 बेटे जब जाके शहर में दाखिल होंगे एक जितने, तो ये किसी की नजरे बद का शिकार ना हो जाएं, किसी के हसद का शिकार ना हो जाएं। तो उन्होंने क्या कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना और अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, यानी इकट्ठे ना जाना, अलग अलग होकर जाना। और मैं तुमसे अल्लाह की तरफ से आने वाली कोई चीज नहीं हटा सकता। क्या मालूम हुआ कि पैगंबर भी अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश को नहीं टाल सकते खुद से, जब तक कि अल्लाह न चाहे। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी पर पस लाजिम है कि भरोसा करने वाले भरोसा करें। और जब वो दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, वो उनसे अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को हटा नहीं सकता था, मगर यकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उसने पूरी कर ली। और बिलाशुबा वो यकीनन बड़े इल्म वाला था, इस वजह से कि हमने उसे सिखाया था, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। देखें, हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, मगर भाई जो थे वो नहीं पहचान पाए थे। भाइयों के ना पहचानने की वजह पता क्या थी, कि वो तो उन्हें अपनी तरफ से कुएं में फेंक चुके थे। उनके ख्याल में उन्हें कोई भेड़िया वगैरह खा चुका होगा। उन्होंने तो उस बाब को बंद कर दिया हुआ था, इसलिए उनके जहन में ये बात कभी आ नहीं थी सकती कि वो शख्स जो इस वक्त साहबे इक्तदार है उनका भाई यूसुफ हो सकता है। मगर तदबीर पर तकदीर सबकत ले गई। फेंका कुएं में भाइयों ने, अल्लाह ने ले जाकर मिस्र का खजांची बना दिया। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो जान लें कि आपका रब आपके साथ कुछ अच्छा करने वाला है। इसके साथ साथ एक बात और भी याद रखनी है कि कोई आपको जितना चाहे जलील कर ले, जहां चाहे ला पटके, आपको आपकी इज्जत समेत किसी चौराहे पर ला खड़ा करे, तो एक बात को याद रखना है, वा तो इज्जु मंतशा वा तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो क्या सीखा है इस रकू से? हजरत यूसुफ ने भाइयों की मदद कर दी, मगर एहसान नहीं जतलाया। खुद से वादा करें कि अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद करने का मौका दिया तो कभी एहसान नहीं जतलाएंगे। भाई ने भाइयों की मदद की, मगर किसी पर कुछ जाहिर नहीं किया।
हम देते बाद में है, पहले 4 बातें सुनाते हैं कि लो भाई आ गई है हमसे मांगने, अपना गुजारा मुश्किल से होता है, इसको कहाँ से दे, रोज मुंह उठा के चली जाती है, ये दे दो वो दे दो। ऐसे ना किया करें। अल्लाह ताला दे तो अपनी इन नेमतों को दूसरों के फायदे का भी जरिया बनाएं। अपनी इन नेमतों को दूसरों के अंदर भी जरूर तकसीम किया। दिल की हरकत बंद हो जाए तो उसे चलाकर दिखाएं। अगर आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उन्हें फिर से कारआमद करके दिखाएं। एक टांग उठा सकता है, जरा दूसरी टांग भी उठाकर दिखाओ। दिखा सकते हो? एक टांग पर तो खड़े हो सकते हो, जरा दूसरी टांग भी उठाओ और फिर खड़ा होकर दिखाओ। मौत के फरिश्ते के सामने जरा अकड़ कर दिखाओ। गर्ज के हर आकिल, हर बालिग खुशी और नाखुशी से, चाहते हुए या ना चाहते हुए, सब अल्लाह ही के सामने सजदा रेज हैं। फिर ऐसे बेबस से फरियाद करना, किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को गरीब नवाज, किसी को मुश्किल कशा कहना, कितनी बड़ी हमाकत है और कितनी बड़ी गुस्ताखी और जुर्रत भी कि हम अल्लाह के साथ किसी को उसके बराबर ला रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि सायों के घटने और बढ़ने पर भी मेरा इख्तियार है। जो सायों का घटना और बढ़ना है, इसमें भी अल्लाह ताला की माशियत है। पिछले पहर और पहले पहर का जिक्र इसलिए है कि इन वक्तों में जमीन पर हर चीज का साया नुमाया हो जाता है और इबादत के लिहाज से भी ये दोनों वक्त जो हैं बहुत ही उम्दा हैं। और परछाइयां सुबह के वक्त जमीन पर यानी फैल जाती हैं, यही उनका सजदा है। यानी जो साया आपका जमीन पर फैलता है वही उसका सजदा करना है। पूछ इनसे कि आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दे अल्लाह। कह दे फिर क्या तुमने इसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपनी जानों के लिए ना किसी नफा के मालिक हैं और ना नुकसान के, यानी तुम उनको पुकारते हो जो अपनी जान के लिए भी किसी किस्म का नफा या नुकसान के मालिक नहीं। तुम्हारे क्या खाक का माना है उन्होंने। कह दे क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं, या उन्होंने अल्लाह के लिए कुछ शरीक बना लिए हैं जिन्होंने इसके पैदा करने की तरह पैदा किया है, तो पैदाइश उन पर गुडमुड हो गई है। कह दे अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है और वही एक नहायत जबरदस्त है। उसने आसमान से कुछ पानी उतारा तो कई नाले अपनी अपनी वुस्त के मुताबिक बह निकले। फिर इस रेले ने उभरा हुआ झाग उठा लिया और जिन चीजों को कोई जेवर या सामान बनाने वाले की गर्ज से आग पर तपाते हैं, इनसे भी इसी तरह का झाग उबरता है। इसी तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। फिर जो झाग है सो बेकार चला जाता है और रही वो चीज जो लोगों को नफा देती है सो जमीन में रह जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली थी उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसकी बात कबूल ना की, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उसके साथ उतना और हो तो वो जरूर उसे फिदिया में दे दें। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा बिछोना है। अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजल करता है, वो हर जमीन पर पड़ती है, बंजर जमीन पर भी, अच्छी जमीन पर भी और बुरी जमीन पर भी, लेकिन इसकी तासीर अलग अलग हो जाती है। जब वही पानी जरखेज जमीन पर, अच्छी जमीन पर बरसता है तो वो जो जमीन है अपना फल फूल दुगना लाती है, अपने मेवे दुगने लाती है, तरह तरह के अनवा इकसाम के फल फूल पैदा करती है। और वही बारिश जब किसी बंजर जमीन पर पड़ती है तो क्या होता है, जब किसी खबीस जमीन पर पड़ती है तो वो कुछ भी नहीं उगाती सवाए खारदार थोर जड़ी बूटियों के। तो यही मिसाल कुरान की है, अल्लाह के दीन की दावत है। कुरान और अंबिया की तालीम और अल्लाह का हुक्म सबके लिए बराबर है। कुछ लोग तो इससे फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग बंजर जमीन की तरह नकारा और बेकार रहते हैं, वो इससे किसी भी किस्म का फायदा नहीं उठाते। तो क्या सीखा है हमने इस रकू से? बुखारी शरीफ की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की पैदाइश 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में जमा होती है, यानी बच्चा हर 40 दिन के बाद अपना रूप बदलता है। फिर इतने ही दिन वो बासूरत खून रहता है,
फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजते हैं जो 4 बातें लिखता है, उसका रिज़्क, उसकी उम्र, अमल और नेक और बद होना। इसलिए ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी तकदीर लिख दी है। अपनी तकदीर पर शाकिर रहना है, लोगों को नफा देने वाला बनना है, नेक अमल करने हैं, अपने लिए सदका जारिया बनाना है, ताकि आप दुनिया से चले जाएं तो भी आपके बनाए हुए सदका जारिया से आपको फैज मिलता रहे, आपको नफा मिलता रहे। यहाँ इस रकू के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों से 5 सवाल किए हैं, जो आप लोगों ने यहाँ तर्जमे में पढ़े हैं अभी। आसमानों जमीन में रिज़्क कौन देता है? नेमतों का मालिक कौन है? दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन है? कौन जिंदा से मुर्दे को निकालता है? कौन मुर्दा से जिंदों को निकालता है? तो सीखने की बातें हैं। अल्लाह ने हम सब के लिए एक मिकदार लिख दी है, उसकी तकसीम पर राजी रहना है, अपनी हालत को खुद बदलना है, क्योंकि जब तक आप बदलना ना चाहें अल्लाह ताला आपको नहीं बदलेगा। सुस्ती छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह के सिवा ना कोई दुआओं का सुनने वाला है और ना कोई कबूल करने वाला। अल्लाह हमेशा से हक पर चलने वालों की दुआ कबूल करता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हक पर चलने वाला बना दे। आयत नंबर 17 में बड़ी खूबसूरत मिसाल है ना। औदियतुन यानी नदी नाले बह जाते हैं। वादी की जमा है, जो असल में पानी बहने की जगह को कहते हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को भी कह लेते हैं। कभी रास्ते के मायने में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन रास्ते पहाड़ी नालों के किनारों के साथ चलते हैं। वो कूड़ा किरकट और झाग जो पानी की तेज रफ्तारी के बायस उसकी सतह पर उभर आता है। जब हम चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं तो उसकी सतह पर उभरने वाला झाग, ये भी उसी की मिसाल है। सोने चांदी वगैरह का जेवर जिससे इंसान जीनत हासिल करता है, जब अल्लाह की रहमत आती है, बारिश आती है, तो ये सब यानी जो गंदगियां होती हैं वो निकल जाती हैं और असली चीज जो है सिर्फ वो बाकी रह जाती है। मतलब ये हो सकता है इस बात का कि बाज बातिल हक पर गालिब आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि आखिरकार अल्लाह ताला उसे मिटा देता है, बेकदरो कीमत बना देता है। हुस्ने अंजाम हक और अहले हक ही का होता है। जैसा कि झाग और खसो खाशाक बेशक पानी को ढांप लेते हैं, मगर आखिरकार क्या होता है? पानी इन्हें किनारों पर फेंक देता है और बेकार कर देता है, और खालिस पानी से लोग फायदा उठाते हैं। इसी तरह सोना चांदी और दूसरी धातुओं को जब पिघलाया जाए तो उनका मैल कुचैल भी ऊपर आ जाता है। आखिरकार कुछ उतार कर फेंक दिया जाता है और कुछ जल जाता है। गर्ज ये कि सारा मैल कुचैल बेकार हो जाता है और लोगों के लिए नफामंद धात जो है सिर्फ वही खालस बाकी रह जाती है, जैसे सोना और चांदी जिससे वो लोग जेवर बनाते हैं, या लोहा और तांबा और पीतल वगैरह जिससे बर्तन और असला और दूसरा सामान बनता है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म और हिदायत देकर भेजा है, इसकी मिसाल बहुत ज्यादा बारिश की है जो एक जमीन पर बरसी। इस जमीन का एक हिस्सा बहुत उम्दा और जरखेज था। इसने पानी को कबूल कर लिया यानी कि जज़ब कर लिया, फिर बहुत सी घास और चारा उगाया, और इसके कुछ हिस्से सख्त जमीन के गड़े थे जिन्होंने पानी को रोक लिया, तो अल्लाह ने उसके साथ लोगों को नफा पहुंचाया। चनाचे उन्होंने पिया और पिलाया और खेती बाड़ी की, और इसके बाज हिस्से चटियल मैदान थे जो न पानी रोकते थे और न घास उगाते थे। तो ये इस शख्स की मिसाल है जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल कर ली। गौर करिएगा, जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल कर ली और उसे इस इल्म ने हिदायत ने नफा दिया जिसे देखकर मुझे अल्लाह ने भेजा था, और इस शख्स की मिसाल जिसने उसकी तरफ सर न उठाया और न अल्लाह की वो हिदायत कबूल की जो देकर मुझे भेजा गया। इन तीनों में से आखिरी मिसाल काफिर की है। यानी इससे अकल वालों की सिफात बयान की गई हैं, जो हम वादे और अहदो पैमान अल्लाह ताला से करते हैं, हम एक दूसरे से भी करते हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला बना दे। जो भी वादा करना है उसे पूरा करना है। वादा पूरा ना करना वादा खिलाफी मुनाफिकीन की सिफत है। मुनाफिक का पता चलता है उसकी वादा खिलाफी से।
मुनाफिक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुनाफिक वो शख्स है जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास कोई इमानत रखवाई जाए तो अमानत में खियानत करे। यानी ये मुनाफिक की निशानियां हैं। और इसके बरअक्स ईमान वालों की क्या सिफात हैं? वादा पूरा करते हैं, अमानत में खियानत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रिश्तों को मिलाते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं, बदले नहीं लेते बल्कि माफ कर देते हैं। याद रखें, इन नेकियों के इवज में अल्लाह ताला ने जन्नतों का वारिस बनाना है। और ये भी देखा कि रिश्तों को तोड़ने और कता रहमी करने वालों का इंजाम क्या होता है। कभी ना कभी किसी न किसी मौका पर मुनाफिकीन की अदात जो है वो खुलकर सामने आ जाती हैं। बज़ाहिर बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो सारे हिसाब बेबाक कर देते हैं, अपने अंदर के छुपे हुए इंसान को बाहर ले आते हैं। मुनाफिकीन की एक आदत फसाद फैलाना भी होता है, रिश्तों को तोड़ना और वादा खिलाफी करना भी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल ना करे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो रिश्तों को जोड़ते हैं, जमीन में फसाद नहीं फैलाते। मोमनीन और अकल वालों की खूबियां पैदा करनी है अपने अंदर, अल्लाह की राह में खर्च करना है, सबके साथ सिला रहमी करनी है, दुनिया की जिंदगी में गुम नहीं हो जाना, आखिरत की भी फिक्र करनी है, अपनी जात को वजह फसाद नहीं बनाना, बुरे अंजाम बुरे हिसाब से डरना है और दूसरों को भी डराना है, बुराई का जवाब अच्छाई के साथ देना है। आप लोगों में से ऐसी कौन है जो बुराई का जवाब अच्छाई से देती है? क्या है कोई? अगला रुकू नोट कर लें 20 से 26 तक। अकल वालों के लिए नसीहत। कहाँ से शुरू हो रहा है देखें। उलुल अलबाब, लुब से निकला है ये लफ्ज, जिसका मायने है अकल। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकल वाला बना दे और हमें अकल वालों में शामिल कर दे। फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की जानब से तेरी तरफ उतारा गया वही हक है, इस शख्स की तरह है जो अंधा है। नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और पुख्ता अहद को नहीं तोड़ते, और वो जो इस चीज को मिलाते हैं जिसके मुतल्लक अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये आयत रिश्तों को जोड़ने वाली आयत है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमत याद दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को जोड़ने का कहा है उन रिश्तों को तोड़ना नहीं, रिश्तों को जोड़ना है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि रिश्तों को जोड़ें, जिसके मुतल्लक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे मिलाया जाए, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। और वो जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और हमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च किया और बुराई को नेकी के साथ हटाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए इस घर का अच्छा अंजाम है। हमेशगी के बगात, यानी जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, नेकियां करते हैं, अगर कोई बुराई सरजद हो जाए तो फौरन अच्छाई करते हैं। अच्छाई जो है वो बुराइयों को मिटा देती है। ऐसे लोगों को अल्लाह ने किन चीजों का वादा किया है? हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जो नेक हुए, और फरिश्ते हर दरवाजे में से उन पर दाखिल होंगे। सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है उस घर का अंजाम। और वो लोग जो अल्लाह के अहद को उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और इस चीज को काट देते हैं जिसके मुतल्लक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसे मिलाया जाए, और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उन्हीं के लिए उस घर की खराबी है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये मेरे बंदे थे, मेरी बंदगी करते थे। कब? रोजे क़यामत। सब्र करने वालों को सिला दिया जाएगा कि ये मेरे बंदे थे, मेरी बंदगी करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते थे, इसके साथ सरहदें महफूज रखी जाती थी और उनके जरिए से नापसंदीदा हालात से बचा जाता था। इनमें से कोई फौत होता तो इस हाल में कि इसकी दिली ख्वाहिश इसके सीने ही में होती, वो इसे पूरा नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस वक़्त उनके पास आएंगे और हर दरवाजे से उनके पास दाखिल होंगे और कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया,
सो अच्छा है उस घर का अंजाम। यानी सब्र करने वालों को अल्लाह ताला अच्छा सिला देगा। अल्लाह के रास्ते में तकलीफें आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, तो मुश्किलात पर सब्र करना है और अल्लाह से अच्छे सिले की उम्मीद रखनी है। अल्लाह की जो रहमत से मायूस हो जाते हैं, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, अल्लाह का फरमान है कि रिश्तों को जोड़ो, और जो इनको तोड़ते हैं वो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक होते हैं और उन्हीं लोगों के लिए आखिरत में बुरा ठिकाना है। अल्लाह रिज़्क फराह कर देता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है और वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए। हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़े से सामान के सिवा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया की जिंदगी का सौदा कर लेते हैं, आखिरत के बदले में यही लोग खसारा उठाने वाले होते हैं। अल्लाह रिज़्क तंग करता है और अल्लाह रिज़्क को फैलाने वाला है। अल्लाह रिज़्क को फराह कर देता है, कशादा कर देता है। यबसुतुर रिज़्क। बहुत से लोगों की गुमराही का सबब ये शुबा बन जाता है कि अल्लाह के जो नाफरमान दुनिया में खुशहाल हैं, वो खुशहाल क्यों हैं? तो सीधा सा जवाब है, यानी दुनिया में रिज़्क की फरावानी या तंगी, ये कोई मियार नहीं है जिसके लिहाज से हम किसी शख्स के अल्लाह के हाँ पसंदीदा होने या ना पसंदीदा होने के बारे में फैसला करें। बाज औक़ात ऐसे होता है कि काफिर को खूब समाने ऐश दे देता है अल्लाह ताला और मोमन पर तंग दस्ती दराज कर देता है ताकि दोनों की आजमाइश हो जाए। मोमन अपने सब्र और शुक्र की वजह से आखिरत में बड़े बुलंद दर्जात पा लेता है, जबकि काफिर नाकाम रहता है। इसमें आखिरत के लिए कोई ठिकाना ही नहीं, सबसे बुरा ठिकाना उनका है। गुमराह लोगों की बदअमालियों के बावजूद उनके पास ऐशो इशरत का जो सामान है उससे धोखा नहीं खाना, बल्कि ये समझ लें कि ये उन्हें मोहलत दी गई है। दुनिया में भी उनके लिए ये माल उनके लिए रुसवाई का बाइस बना हुआ है, जिल्लत का बाइस बनेगा और आखिरत में भी वो लोग रुसवा होंगे। मस्तूर बिन शदाद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में इस मिसाल के सिवा कुछ नहीं कि तुम में से कोई शख्स अपनी ये उंगली, और रावी यहया, उन्होंने शहादत की उंगली के साथ इशारा किया, समंदर में डाले, फिर देखे कि वो क्या चीज लेकर वापस आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए हुए थे। उठे तो चटाई ने आपके पहलू पर अपने निशान लगा दिए थे। हमने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपके लिए बिस्तर वगैरह बना दें तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा और दुनिया का क्या ताल्लुक? मैं तो दुनिया में महज इस सवार की तरह हूँ जिसने एक दरख्त के साए में आराम किया, फिर उसे छोड़कर चल दिया। बस इतनी सी मिसाल है दुनिया की, एक मुसाफिर की सी, कि हम सफर के दौरान किसी दरख्त के नीचे चंद मिनट के लिए सस्ताने के लिए बैठते हैं, हवास दुरुस्त करते हैं और फिर अगली मंजिल की जानिब। अगला रुकू नोट कर लें, दिलों का सुकून जिक्र इलाही। एक बात नोट करें, फेफड़ों को सुकून मिलता है तब जब उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। मैदे को सुकून तब मिलता है, वो तब अच्छी तरह से काम करता है जब उसके अंदर सेहतमंद खुराक जाती है। और दिल काम कब करता है? जब उसे उसकी खुराक मिलती है। और दिल की खुराक कौन सी है? जिक्र करना। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक खबरदार हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। अगले रुकू का नंबर नोट कर लिया, 27 से 31 तक। दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। और जिन लोगों ने कुफर किया, कहते हैं इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। कह दे, बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और अपनी तरफ से रास्ता देता है जो रजू करता है। और वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिल के इत्मीनान का बाइस है। यानी अल्लाह की याद से ही दिल इत्मीनान पकड़ते हैं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उनके लिए खुशहाली और अच्छा ठिकाना है। इसी तरह हमने तुझे ऐसी उम्मत में भेजा जिससे पहले कई उम्मतें गुजर चुकी,
تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا قرآن ہوتا، یعنی کوئی اور اس جیسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یعنی معجزات مانگتے ہیں۔ معجزات دکھانا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم معجزے دیکھ بھی لو تب بھی تم نہیں مانتے، یعنی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، چاہے انہیں جتنے مرضی معجزات دکھا دیے جائیں۔ یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو اللہ نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگ بھی اگر مل جائیں، پوری کائنات مل جائے کہ وہ کسی شخص کو راہ راست پر لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ہدایت ملے گی مگر مانگنے سے، بنا مانگے رزق ملے گا، کپڑے ملیں گے، ہر چیز ملے گی، مال اولاد ہر چیز ہر نعمت اللہ دے گا، مگر ہدایت مانگنے پر ہی ملے گی۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور دعا ذکر کی بہترین حالت ہے۔ اللہ ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے رجوع کرنے والا ہی ہدایت پا سکے گا۔ اللہ کی یاد دل کے غم کا مرہم ہے، اللہ کی یاد دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے دل کے سکون کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ کافر غم میں مایوس ہو جاتے ہیں اور مومن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا ہے، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا ہے۔ دنیا کی لذتوں میں جیسے کہ ناچ گانے کی محفلیں ہو گئی، مہندی کا فنکشن ہو گیا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری رسومات ہیں جو ہمیشہ بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سکون ملتا ہے تو صرف کہاں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر مطمئن ہو جانا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا قرآن کو پڑھ کر آپ یہ ساری باتیں اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر محسوس کرتی ہیں۔ اس قرآن کو پڑھ کر آپ اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ کام لے کر آیا کریں، میرے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے اپنے پہلے والے پارے سے کیا سیکھا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک پہلا کھانا ہضم نہ ہو دوسرا کھانا مزہ نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ ہضم ہوتا ہے، آسانی سے معدے میں بھی نہیں اترتا۔ تو اس لیے اگلے پارے پر جانے سے پہلے پچھلے پارے پر اچھی طرح سے غور و فکر کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لے، 32 سے 37 تک، 32 سے 37 تک۔ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر جان اس پر نگران ہے جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے، کہہ دے ان کے نام تو لو ذرا۔ یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اگر اللہ گمراہ کر دے تو کائنات مل کر زور لگا لے، اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔
बार बार एक ही चीज की तकरार है, एक ही एहसास यहाँ पर जगाया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। जमीनों आसमान की तमाम कायनात की जो चीजें हैं वो अल्लाह के कब्जा कुदरत में है, अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जिसको चाहता है अजाब दे देता है, जिसको चाहता है माफ कर देता है। यानी सवाब और जजा अल्लाह के हाथ में है। किसी को बदबख्त बना दे, किसी को खुशबख्त बना दे, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। उनके लिए एक अजाब दुनिया की जिंदगी में है, यानी जो अल्लाह के मुनकर हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते, उनके लिए दुनिया भी अजाब है और आखिरत भी अजाब है। आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त है। देखें, दुनिया के अजाब भी सख्त है, लेकिन आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त है और इन्हें अल्लाह से कोई भी बचाने वाला नहीं। रोजे महशर कोई अल्लाह से नहीं बचाएगा। जिन्हें ये लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, जिनके मुताबिक जो इनके गुमान में ये है कि वो इन्हें अल्लाह के हाथ से बचा लेंगे, रोजे क़यामत कुछ काम नहीं आने वाले। वो खुद वहां पर अपनी अपनी जानों की फिक्र में मुब्तला होंगे, कांप रहे होंगे कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि तुम्हारी ये आग जो इब्ने आदम जलाता है, जहन्नम की गर्मी के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सब की गर्मी इसकी मिसल है और आखिरत के अजाब के बहुत ज्यादा सख्त होने का सबसे बड़ा बाइस ये है। आखिरत का अजाब हमेशा हमेशा के लिए है किन के लिए? जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह की इबादत में दूसरों को उसके साथ शरीक ठहराते हैं, यानी बुतों को और अपने बुजुर्गों को और अपने बाबों को अल्लाह के साथ बराबर शरीक कर लेते हैं कि ये हमें रोजे क़यामत यानी रोजे क़यामत की सख्तियों से बचा लेंगे। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उस दिन कोई सिफारिश काम आने वाली नहीं, हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। और उसके बरअक्स मोमन लोगों की जो मिसाल है, पहले जहन्नम के बारे में बताया गया और अब अगली आयत में जन्नत की खूबियां बताई जा रही हैं। नोट करते जाइएगा, साथ साथ गिनते जाइएगा। इस जन्नत की सिफ्त जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, ये है कि इसके नीचे से नहरें बह रही हैं, इसका फल हमेशा रहने वाला है और इसका साया भी। ये इन लोगों का इंजाम है जो मुत्तकी बने, और काफरों का इंजाम आग है। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है और वो इस पर खुश होते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया है, और कुछ गिरोह वो हैं जो उसके बाज का इनकार कर दे हैं। कह दे, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाऊं। मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है। जन्नत की सिफ्तें यानी मुत्तकी लोगों को जो मिलने वाली जन्नत है, उसका हाल क्या है? इसके दरख्तों और मकानों के नीचे से नहरें बह रही होंगी। इसका फल दायमी होगा, ये नहीं कि कभी फल आ गया और कभी ना आया। और इसी तरह उनके सायों का भी यही हाल है। इसके फल भी कभी खत्म नहीं होंगे, ना किसी जंती को उनसे कोई रुकावट कभी पेश आएगी। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इस पर खुश होते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया है। और कुछ गिरोह वो हैं जो इसके बाज का इनकार करते हैं। कह दे, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाऊं। मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है। हर नबी, हर रसूल की दावत अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह की तौहीद की दावत है। और इसी तरह हमने उसे अरबी फरमान बनाकर उतारा है। और यकीनन अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इसके बाद जो तेरे पास इल्म आ चुका, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तेरा कोई दोस्त होगा और ना कोई बचाने वाला। व कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिया, यानी जिस तरह पहले अंबिया की तरफ किताबें उतरी, उसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। और जिस तरह हर नबी पर उसकी कौम की जुबान में वही और किताब नाजल की, इसी तरह अरबों पर भी उन्हीं की जुबान में किताब उतारी, किसी दूसरी जुबान में नहीं, ताकि वो ये ना कह सकें कि हमें तो ये जुबान आती नहीं, इसलिए हमें इसकी समझ ही नहीं आती। अल्लाह ताला के लिए ऊपर की जानब होने या अर्श पर होने को तस्लीम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हर जगह पर है, अल्लाह अर्श पर नहीं है। अल्लाह मेरे पास भी है, अल्लाह कराची में भी है, अल्लाह लाहौर में भी है, अल्लाह सियालकोट में भी है, अल्लाह गुजरांवाला में भी है, अल्लाह साथ वालों के घर में भी है, अल्लाह मेरे पास भी है। ये वहदतुल वजूद का अकीदा है जो कि दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। अल्लाह एक है और वो अर्श के ऊपर मौजूद है।
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے علم میں اس قدر سمایا ہوا ہے، اس طرح اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی مخلوق کی طرح، ایک چھوٹی سی حیثیت سے ہم ان کے سامنے ہیں کہ ہماری ایک ایک حرکت اللہ کی نظر میں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ذرہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا، ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے علم میں سمایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اوپر کی جانب ہے اور عرش پر ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یقیناً ہم نے تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ لیا، یا ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورۃ اعراف میں فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں سمایا ہوا ہے۔ پھر آپ کے مخاطب اگرچہ قیامت تک کے تمام جنوں انس ہیں، تاہم سب سے اول مخاطب کون ہیں؟ عرب لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ان کا اور ان کی زبان کا انتخاب ان کی فطری خوبیوں اور ان کی زبان کی جامعیت، فصاحت و بلاغت اور حسن ادا، آسان ہونے اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے فرمایا، اور اسے اہل عرب پر احسان قرار دے دیا۔ اسی طرح سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اور بے شک وہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت یا شہرت کا باعث ہے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس قرآن نے عربی زبان کو ایسا محفوظ کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود عربی زبان اصل صورت میں موجود ہے، جبکہ دوسری تمام زبانیں کچھ عرصہ کے بعد بدل جاتی ہیں، حتیٰ کہ پہلے لفظ بالکل ہی متروک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انگریزی وغیرہ کا بھی حال ہے۔ خود عربی کو دیکھ لیجئے کہ قرآن کی وجہ سے عربی محفوظ ہے، مگر عام لوگوں کی عربی مختلف ہے۔ البتہ اصل عربی کو قرآن نے صدیوں سے اصل صورت میں باندھ رکھا ہے، وہ دنیا بھر میں ایک ہی ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا اور اس کے غصے سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس میں وعید ہے ان علماء کرام کے لیے جو جانتے بوجھتے سنت کو چھوڑ کر بدعت اور ضلالت اس کو تھام لیتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اقوال رجال کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جنتی خوب کھائیں پیئیں گے، لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گی، نہ ان کی ناک بہے گی، نہ انہیں پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوگی۔ مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے، اسی طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی۔ یا اللہ ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دے، آمین۔ تو کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کائنات میں صرف حکم اللہ کا چلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اتباع رسول کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کرنی ہے کہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا کرے، تاکہ ہم جنتوں میں بھی اسی طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس لگائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اسی طرح ہم جنتوں میں مجلس لگائیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے والا ہے، جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے کامیابی کے ساتھ پار اتار دے، اور میدان حشر کی سختیوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو ایک بات جو ہم نے جس پر عمل کرنا ہے، منہ میں آئی بات فٹ سے نہیں بول دینی، اللہ کی سزاؤں سے ڈرتے رہنا ہے، قرآن سے دعا اور ذکر اور اذکار سے اپنا ناطہ مضبوط کرنا ہے، جنت کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، قرآن پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اگلا رکوع ہے 38 سے 43، 38 سے 43۔ تقدیر حکمت الہی ہے،
अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है। इस पर यकीन रख लेंगे तो जिंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी और बड़े सुकून से हमारी जिंदगी गुजरेगी। और बिलाशुबा हमने कई रसूल तुझसे पहले भेजे और उनके लिए बीवियां और बच्चे बनाए, और किसी रसूल के लिए मुमकिन न था कि वो कोई निशानी ले आता मगर अल्लाह के हुक्म से। हर वक्त के लिए एक किताब है, अल्लाह मिटा देता है जो चाहता है और साबित रखता है, और इसी के पास असल किताब है, उम्मुल किताब, यानी सारी चीजों की जो असल किताब है, असल जड़ है, वो अल्लाह ही के पास है। जिस चीज या हाल को तुम मिलने वाले हो, कलम उसके साथ खुश्क हो चुका है। इस हदीस से क्या मालूम होता है कि जो फैसला हो चुका है वो अब मिटने वाला नहीं। तकदीर दो किस्म की है, एक वो जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसे कज़ाए मुबर्रम कहते हैं, और ये वही है जिसके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, तुम जिस चीज या हाल को मिलने वाले हो इसके साथ कलम खुशक हो चुका है। और एक तकदीर वो है जिसमें तब्दीली होती है, इसे कहते हैं तकदीर मुअल्लक, और वो भी अल्लाह के इल्म में है। दुनिया में हर चीज इस बाब से है, बाज इस बाब जाहिर हैं और बाज छुपे हुए हैं। इस बाब की तासीर का एक अंदाजा मुकर्रर है, जब अल्लाह चाहे इनकी तासीर अंदाजे से कम या ज्यादा कर सकता है, और जब चाहे वैसी ही रखे। आदमी कभी कंकड़ से मरता है और कभी गोली लगने से भी बच जाता है, और एक अंदाजा हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, वो हरगिज नहीं बदलता। अंदाजे को कहते हैं तकदीर। ये दो तकदीरें हैं, एक बदलती है यानी तकदीर तासीर असबाब, और एक नहीं बदलती यानी इल्मे इलाही। और कभी हम वाकई तुझे इसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या वाकई तुझे उठा लें तो तेरे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है और हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन की तरफ आते हैं, उसे उसके किनारों से कम करते आते हैं, और अल्लाह फैसला फरमाता है, इसके फैसले पर कोई नजरसानी करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, आमीन। और बिलाशुबा उन लोगों ने तदबीरें की जो उनसे पहले थे, सो असल तदबीर तो सब अल्लाह ही की है। वो जानता है जो कुछ हर शख्स कर रहा है, और अनकरीब कफार जान लेंगे कि इस घर का अच्छा अंजाम किसके लिए है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया कहते हैं तो किसी तरह रसूल नहीं है, कह दे मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी गवाह है, और वो शख्स भी जिसके पास किताब का इल्म है। वक़द मकर लजीना, यानी इनसे पहले कफार ने भी अपने रसूलों को सताने और इस्लाम को नीचा दिखाने की बहुत कोशिशें की थी। ये कोई नई बात नहीं है, आप ही को पेश नहीं आ रही। फिर कोई तदबीर अल्लाह की माशियत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। सो अगर उनकी कोई तदबीर कामयाब हुई तो अल्लाह ताला की हिकमत का ही तकाजा होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्द ये काफिर भी मालूम कर लेंगे कि उस दुनिया के घर का अच्छा अंजाम किसके हक में होता है। यानी बाज लोग तो ऐसे थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार कर दिया। ये थी सूरत रात। दीन वालों पर तनकीद नहीं करना, अपना मुहासबा करना है, इत्तबाए रसूल करनी है, शैतान की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक मानना है। बेहतरीन फैसला करने वाली जात अल्लाह की है, इसलिए हमेशा अपनी तकदीर के फैसले पर मुतमईन रहना है। अगली सूरत हजरत इब्राहिम है। जिस तरह की ये सूरतों का सिलसिला अंबिया के नाम से शुरू हुआ, आप देखें ये अगली सूरत हजरत इब्राहिम के नाम से आ गई है। रुकू का नंबर नोट कर लें 1 से 6 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदनी सूरत है, 52 आयात हैं इसकी और 7 रुकू हैं। अलिफ लाम रा, अल्लाह के नाम से जो बेहद नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अलिफ लाम रा हरूफे मुकत्तियात हैं। एक किताब है जिसे हमने तेरी तरफ नाजिल किया ताकि तू लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाए, इनके रब के हुक्म से, इसके रास्ते की तरफ जो सब पर गालिब बेहद तारीफ वाला है। अगर कोई पूछे कि कुरान को क्यों नाजिल किया गया है, कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या है, तो बहुत वाज़ेह और सीधा सा जवाब है
इस रकू का टॉपिक भी यही है, अंधेरों से निकालकर रोशनियों में लाने वाली किताब कुरान मजीद। तो आपने लोगों के सवाल का जवाब किस तरह से देना है? ताकि तू लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाए। कुरान किस लिए है? रोशन किताब है, जहालत मिटाता है, तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। एक बात तो ये हो गई कि तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है, और दूसरा क्या? इस अल्लाह के रास्ते की तरफ, कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब के बाइस बड़ी हलाकत है। और वो जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महबूब रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, ये लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में, ताकि वो उनके लिए खोलकर बयान कर दे। ये आयत इस बात की दलील है कि कुरान को अरबी जुबान में क्यों नाजिल किया गया था। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में, ताकि वो उन लोगों के लिए खोलकर बयान करे। फिर अल्लाह गुमराह कर देता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है, और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ला और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। बिलाशुबा इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, जब इसने तुम्हें फिरौन की आल से निजात दी जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे और तुम्हारे बेटे बुरी तरह जिबा करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्या पता चला कि पैगंबर का काम हिदायत के रास्ते दिखाना है। असल हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है, पैगंबर का नहीं। पैगंबर सिर्फ रास्ते की रहनुमाई करते हैं और हिदायत अल्लाह ताला देता है। इस रको से हमने क्या सीखा है? बिना मांगे किसी दूसरे की चाहत से हिदायत नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालब को जरूर ईमान की जो हलावत थी वो उनके दिल में उतारने में कामयाब हो जाते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, उनकी तड़प के बावजूद हजरत अबू तालब का ईमान ना लाना इस बात की दलील है कि अंबिया या किसी दूसरे इंसान की चाहत से हम किसी को हिदायत की तरफ नहीं ला सकते। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, और अल्लाह ताला तब तक हिदायत नहीं देता जब तक कि उससे हिदायत तलब ना की जाए। इस रकू में हमने सब्र और शुक्र करना सीखा। सब्र और शुक्र भी ईमान का हिस्सा है। शुक्र करें तो सब्र बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर आपने शुक्र कर लिया है तो आपका सब्र भी बढ़ जाएगा और नेमतें भी आप पर बढ़ा दी जाएंगी। कुफरान नेमत करने वाले नाशुक्र लोग अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं, इसलिए सब्र और शुक्र को लाजिम करना है। याद रखें, जहन्नम में औरतों की कसरत है। किस वजह से? सिर्फ नाशुक्री की बिना पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया था, ऐ औरतों की जमात, कसरत से सदका किया करो, क्योंकि मैंने देखा है जहन्नम में कसरत तुम्हारी है। तो औरतों ने कहा कि क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाशुक्री की बिना पर। तुम लोग अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। हर रोज तुम्हें खिलाता पिलाता है, तुम्हारे तमाम खर्चे जो हैं वो बर्दाश्त करता है, तुम्हारी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता है, और जब कभी हालात तंग हो जाते हैं या जब कभी वो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता तो तुम क्या कहते हो कि सानू तो तेरे घरों कभी कुछ नसीब ही नहीं होया, असी तो सारी उम्र भूखे मर गए, कभी कुछ नहीं मिला, कुछ नसीब नहीं हुआ तुम्हारे घर से। है ना नाशुक्री की बात? हर रोज खाया और एक दिन नहीं मिला तो नाशुक्री कर दी। तो क्या करना है? नाशुक्री से बचना है। दुनिया की बजाय आखिरत की फिक्र करनी है। लोगों को हिदायत की तरफ दावत देनी है। लोगों को हिदायत की तरफ दावत देनी है, दावत की तरफ लेकर आना है। हिदायत अल्लाह देता है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अगला रुकू नोट कर लें, 8 से 12 तक। शुक्र करना नेमतों को बढ़ा देता है। और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि बेशक अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ही ज्यादा दूंगा, और बेशक अगर तुमने ना शुक्री की तो बिलाशुबा मेरा अजाब यकीनन बहुत सख्त है। एक नेमत का शुक्र करना दूसरी नेमत की आमद का जरिया बन जाता है, और मोमन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते।
मायूसी कुफर है और कुफर करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब कुफर करो तो बेशक अल्लाह यकीनन बड़ा बेपरवाह है, बेहद तारीफ वाला है। यानी अगर तुम शिरक करते हो, सब के सब मिल जाओ, तो इसमें अल्लाह ताला का क्या बिगाड़ लोगे? अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अपना नुकसान करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाले आदमी के दिल वाले हो जाए तो ये चीज मेरी सल्तनत में किसी चीज के अजाफे का बाइस नहीं बनती। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन तुम में सबसे ज्यादा फाजिर शख्स के दिल वाले हो जाएं, तो ये चीज मेरी सल्तनत में किसी शय की कमी नहीं करेगी। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन एक मैदान में खड़े हो जाएं, फिर मुझसे मांगे और मैं हर शख्स को जो उसने मांगा है दे दूं, तो ये चीज इससे जो मेरे पास है कुछ कमी नहीं करेगी, मगर जितना सुई जब वो समंदर में दाखिल की जाए, यानी इतनी कमी होगी जितना हम एक सुई को समंदर के पानी के अंदर डालते हैं, जब हम सुई को बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उस वक्त सुई के साथ कितना सा पानी लगा होता है। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं आई जो तुमसे पहले थे, नूह की कौम की खबर और आद और समूद की और उनकी जो उनके बाद थे, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उनके रसूल उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों में लौटा लिए और उन्होंने कहा, बेशक हम इसे नहीं मानते जो तुम देकर भेजे गए हो। बेशक हम तो उस चीज के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो एक बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह ताला के बारे में कोई शक है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है? तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श दे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे दे। उन्होंने कहा, तुम नहीं हो मगर हमारे जैसे बशर। क्या चीज समझ में आई कि अंबिया भी इंसान थे, बशर थे, फरिश्ते नहीं थे, मगर हमारे जैसे बशर। तुम चाहते हो कि हमें उससे रोक दो जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, तो हमारे पास कोई वाज़ेह दलील ले आओ। यानी बज़ाहिर तुम एक इंसान की शक्ल में ही हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो, ओढ़ते पहनते हो, बीवियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हम। फिर तुम्हारी हम पर बर्तरी कैसे हो गई? फिर हम आपकी बर्तरी खुद पर कैसे साबित कर लें? मकसद ये कि हमारे अबाओ अजदाद, यानी तुम हमें हमारे अबाओ अजदाद के माबूदों की इबादत करने से रोकते हो, यानी तकलीद। गौर फिक्र नहीं करना, समझना नहीं है, बस अंधी तकलीद करते जाना है आंखें बंद करके। जब इन लोगों के पास कोई दलील नहीं ना रहती, जब इनसे कहा जाता है कि दलील दो, तो फिर उनके पास आखिरी हरबा कौन सा रह जाता है? वमा अलैना आबाउना, कि ये वही तरीका है जिस पर हमने अपने अबाओ अजदाद को पाया, अपने बाप दादा को जिस तरीके पर पाया। और कहा कि क्या तुम हमें उस इबादत से, उन लोगों की इबादत से, उन खुदाओं की इबादत से रोकना चाहते हो जिनकी हमारे अबाओ अजदाद इबादत करते थे? यानी उन्होंने कहा, हमने तुम्हें नहीं मानना, अपने बाप दादा की तकलीफ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम नहीं हैं मगर तुम्हारे जैसे बशर, और लेकिन अल्लाह एहसान करता है अपने बंदों में से जिस पर चाहे, और हमारे लिए कभी मुमकिन नहीं कि तुम्हारे पास कोई दलील अल्लाह के हुक्म के सिवा ले आए, और अल्लाह ही पर पस लाजिम है कि मोमन भरोसा करें। क्या मालूम हुआ कि भरोसा और तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर करना है, और जो मोमन है वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें, हालांकि उसने हमें हमारे रास्ते दिखा दिए हैं, और हम हर सूरत उस पर सब्र करेंगे जो तुम हमें तकलीफ पहुंचाओगे, और अल्लाह ही पर पस लाजिम है कि भरोसा करने वाले भरोसा करें।
یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اس کے بھروسے پر استقامت اختیار نہ کریں۔ رہا تمہارا ہمیں تکلیف دینا تو ہم ہر حال میں اس پر صبر کریں گے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ بھروسہ رکھنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کچھ بھی مشکل پیش آ جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی خوف ہے، کسی قسم کی پریشانی میں ہے، تذبذب میں ہے، تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ صرف بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، معجزات نہیں مانگنے، معجزات دینا انبیاء کا اختیار نہیں، انبیاء کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ انبیاء بھی بشر ہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں، وہ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں۔ انبیاء کو علم غیب اتنا ہی دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی ہی خبر دی جاتی ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ معجزات نہیں مانگنے، بس مان لینا ہے، اتباع رسول کرنی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دلیل دیکھنے سے ایمان نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے۔ اس میں ہمارے لیے نقطہ عمل کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازے گا۔ اللہ کی دی ہوئی چیز کا بہترین استعمال کرنا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں توکل کرنا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں کو دیکھ لیں، صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ جتنا توکل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ دیکھیے، توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی تدبیر کرتے جائیں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھروسہ اللہ پر کر لیں، آپ بس کوشش کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، اللہ پر اپنے معاملات کو اس طرح سے چھوڑ دیں، اس طرح سے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں کہ دیکھیے کتنا خوبصورت سا انداز ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ توکل کا آخری درجہ ہے، یعنی ہمیں اس طرح سے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اب رکوع نمبر 13 سے 21، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ یعنی جب بھی وقت کے نبی نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا، انہیں دھمکیاں دی کہ یا تو ہماری زمین سے نکل جاؤ یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور یقیناً ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش سخت اناد رکھنے والا نامراد ہوا اور اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس سے پانی پلایا جائے گا جو پیپ کی صورت میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آپ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے، رات کو طرح طرح کے مشروبات بنا کر پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ پیپ۔ وہ اسے بامشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا اور قریب نہیں کہ اس کے حلق سے اترے، یعنی گھونٹ گھونٹ پینے کی صورت میں بھی حلق سے اترنے والا نہیں، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو
को हक के साथ पैदा किया है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर हरगिज मुश्किल नहीं। और वो सब के सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो कमजोर लोग उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने थे कि बेशक हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से बचाने में कोई भी काम आने वाले हो? वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम तुम्हें जरूर हिदायत करते। हम पर बराबर है कि हम घबराएं या हम सब्र करें, हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। क्या मालूम हुआ? बुराई की तरफ तबीयत खुद ब खुद मायल हो जाती है और नेकी की तरफ इसे खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए बुराई से सख्ती के साथ बचाव करना है और रोजे क़यामत कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि बुरे लोगों को मिटाकर अच्छे लोगों को ले आए, इसलिए अच्छे काम करने हैं। अल्लाह से जवाबदही से डरना है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के दीन की दावत देनी है, अल्लाह के हुक्म को मानना है, इत्तबाए रसूल करनी है, शैतान की पैरवी नहीं करनी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी। अगला रुकू है 22 से 34 यानी 22 से 34, शैतान की तकरीर। यहाँ पर दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है, एक ग्रोह रहमान का और दूसरा ग्रोह शैतान का। कौन सी चीज इस्लाम में पहले करनी है और कौन सी बाद में आनी है वो हम इस रुकू के अंदर देखेंगे। सारी जिंदगी शैतान के बहकावों में आकर हम लोग गुनाह करते रहते हैं और आखिर की बाकी क्या होता है कि शैतान मुकर जाता है। शैतान मुकर जाएगा, जान लें हर गुनाह जो है वो शैतान का दावतनामा है। अब हमारी मर्जी है कि हम उसे कबूल करते हैं या ठुकराते हैं। जरा शैतान की बात तो सुने कि शैतान क्या कहता है। और शैतान कहेगा जब सारे काम का फैसला कर दिया जाएगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया, सच्चा वादा, और मैंने तुमसे वादा किया, मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की और मेरा तुम पर कोई गलबा न था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने फौरन मेरी बात को मान लिया। यानी शैतान क्या कह रहा है? कह रहा मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अल्लाह ताला ने पहले दिन ही बता दिया था कि तुम्हारा खुला दुश्मन हूं, फिर भी तुम लोगों ने अल्लाह की बात नहीं मानी, मेरी बात मान ली। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी दावत दी थी, तुमने फौरन कबूल कर ली, तो तुमने फौरन मेरा कहना मान लिया। अब मुझे मलामत ना करो, यानी अब मुझे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने अमाल के हकदार हो। आप मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। यानी मुझे बुरा कहने की बजाय अपने आप को बुरा कहो। मैंने कौन सा तुम्हें मजबूर किया था? मैंने तो सिर्फ एक दावत दी थी, तुमने खुशी खुशी मेरी दावत को कबूल कर लिया। तो आज मैं तो तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूं और कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। आज तुम्हें कोई अजाब से नहीं बचा सकेगा। क्या कहा शैतान ने? मुझे मलामत ना करो और अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंचने वाला हूं और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले हो। बेशक मैं उसका इनकार करता हूं जो तुमने मुझे इससे पहले शरीक बनाया। यकीनन जो लोग जालिम हैं उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो ऐसे बागात में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। वो इनमें अपने रब के हुक्म से हमेशा रहने वाले होंगे। उनकी आपस की दुआ इसमें सलाम होगी। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक यहाँ भी मुशरिकीन और शैतान के जिक्र किया और उसके बाद ईमान और साले अमल वालों का अंजाम क्या होना है वो भी यहाँ पर बता दिया। बुरे अमाल करने वाले जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम के अजाब किस तरह के हैं आपने पीछे पढ़ा ही है। और फिर उसके बाद जहन्नम से डराया और साथ ही जन्नत की खुशखबरी भी दे दी। यानी जो बुरे काम करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे और नेक अमल करने वालों का अंजाम जन्नतों में दाखिला है। दाखिल किए जाएंगे, दाखिल कौन करेगा? उसकी तीन जोहते हैं। असल तो अल्लाह ताला है जो जन्नत में भेजने का हुक्म देगा, फिर उसके बाद फरिश्ते हैं जो उसके हुक्म से उन्हें जन्नत में ले जाएंगे, और तीसरे उनका ईमान और अमल सालेहा हैं जो अल्लाह की रहमत और उनकी जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। जन्नतों में आपस में कैसे सलाम दुआ होनी है, यानी आपस में हम मिलते वक्त कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो फरिश्ते फिर उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, यानी सलाम हो तुम पर उसके बदले में जो तुमने सबर किया, यानी तुम पर सलामती हो। फिर रब्बे रहीम उन्हें सलाम कहेगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम हो उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बेहद मेहरबान है। सलामती की जो दुआ है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सलामती का तोहफा है।
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، یعنی اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ ہلاکت والا گھر کون سا ہے؟ ہلاکت والا گھر ہے جہنم۔ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کلی عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی، یعنی اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی روز قیامت آنے سے پہلے صدقات کر لے۔ روز قیامت جب آ گیا تو پھر اس دن نہ کوئی بدلہ لیا جانا ہے، نہ کوئی سفارش کام آنی ہے، اور نہ ہی کوئی صدقہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ شیطان کا گروہ نہیں بننا، رحمان کا گروہ بننا ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ کلمہ طیبہ پکیزہ درخت ہے جو پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ کڑوا اور برا درخت ہے۔ یہ جو تصویب ہے یہ قبر میں فرشتوں کے جواب میں میدان حشر میں بھی کام آئے گی، اس لیے استقامت اختیار کرنی ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے سب کچھ دے دیا، جو کچھ چاہا وہ بھی دے دیا، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے بنا مطالبے کے، بنا مانگے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور یہی نعمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے اور ہر وقت کرتا ہی رہتا ہے، مگر وہ ہے کہ ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ناشکری پر اتر آتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ظالم اور ناشکرا ہے۔ کس طرح سے؟ مراد کافر انسان ہے کہ وہ اللہ کا حق دوسروں کو دے کر، یعنی غیر اللہ کی عبادت کر کے بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی۔ ہر وقت ناشکری۔ مومن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کافر
اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کافر انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے نہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرتا ہے۔ کبھی کسی کو جھولی بھرنے والا کہہ دیتا ہے تو کبھی کسی کو داتا کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کو دستگیر بنا دیتا ہے تو کبھی کسی کو مشکل کشا بنا دیتا ہے، جبکہ دستگیر، داتا، مشکل کشا، جھولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی کہ جہنم میں؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یہ اس کی زبردست ناشکری ہے۔ اے غافل انسان، کاش کہ تو اپنے اصل داتا اور اصل دستگیر کو پہچان اور اس کا احسان مان لے، اسی کا شکر ادا کر۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یعنی بتوں سے امیدیں رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی رکھنا یہ کفر ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ کشتیوں کے اندر